राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई और इस बैठक में पार्टी ने 7 अहम जो प्रस्ताव थे वो पास किए, जिनमें स्टेटहुड की बहाली, आर्टिकल 370, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और लोगों की मुश्किलें शामिल रहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा सांसद आगा रोहिल्ला का इस बैठक से दूर रहना और इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला का साफ और सख्त बयान। बैठक के फैसले, पार्टी की रणनीति और भीतर उठते सवाल, कौन से ऐसे सवाल हैं जो अब खलबली मचा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस खास रिपोर्ट में देखें। श्रीनगर में 2 दिनों तक चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी ने संगठन, प्रशासन और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में कुल 7 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें शामिल हैं पूर्ण राज्य दर्जे की बहाली, आर्टिकल 370 की बहाली की मांग, दिल्ली ब्लास्ट की निंदा, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की निंदा और जांच की मांग, जेएनके के बाहर छात्रों और कारोबारियों की चुनौती पर चिंता, घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करने का भरोसा और सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूर्ण समर्थन। जो पहला रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ है वो ये है कि द वर्किंग कमेटी यूनानिमसली रिफर्म्ड its unwavering commitment to the restoration of Jammu and Kashmir's special status. The committee reiterated that this issue is central to the aspiration and dignity of the people and must be addressed without further delay. The party will continue its principled fight for its full restoration. Number 2, जो resolution 2 है, the working committee urged the government of India to immediately restore full statehood to Jammu and Kashmir, as promised on the floor of the Parliament, repeatedly affirmed in the public domain and noted by the Constitution Bench of the Supreme Court. जो resolution 3 था हमारा, the working committee expressed serious concern and unequivocally condemned the terror attack in Delhi. It extended heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. In a civilized society, violence has no place and such heinous acts must be dealt with firmly and decisively. Resolution 4. The working committee also expressed deep concern over the Nowgam blast and conveyed its condolences to the affected families. The committee stated that the incident must be investigated at the highest level and responsibility fixed for any deviation from the standard operating procedures. Resolution 5. The working committee expressed serious concern over the reports of harassment faced by the students, traders and residents of Jammu and Kashmir in different parts of the country. It strongly condemned their selective targeting in the aftermath of the recent events. The committee emphasized that the people of Jammu and Kashmir cannot be stereotyped and called upon all the state governments to ensure the safety, dignity and protection of the lives and property of Kashmiris and other residents of Jammu and Kashmir living or working across India. Not every Kashmiri is a terrorist or a supporter of terror. Resolution 6. The working committee reiterated the party's unwavering commitment to fulfilling all promises made in its manifesto. और जो आखिरी resolution है, the working committee unanimously reaffirmed its full support to the government led by Mr. Umar Abdullah and urged it to continue fulfilling the aspiration of the people and upholding their dignity. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने बैठक में सभी विधायकों और सांसदों के सुझाव सुने, उनके इलाकों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और बडगाम और नगरोटा उपचुनाव के नतीजों की भी समीक्षा की गई। बैठक में सबसे बड़ा सवाल रहा एनसी सांसद आगा रोहिल्ला क्यों नहीं शामिल हुए। जब मीडिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा तो उन्होंने बिना नाम लिए सीधे कहा कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं और पार्टी लाइन पर चलते हैं वही इस मीटिंग में थे, जो अनुशासन नहीं मानते वो मीटिंग से दूर रहे। आगा रोहिल्ला की चिंता पार्टी से ज्यादा मीडिया को है। सीएम उमर के इस बयान ने साफ संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व और आगा रोहिल्ला के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के ओहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत हमें।
बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रशासनिक संरचना और राज्य के पुराने अधिकारों पर भी बात रखी। उन्होंने याद दिलाया कि पहले SKIIMS की मैनेजिंग कमेटी IUST और बाबा गुलाम शाह बटशाह यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के चांसलर मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अब कई अहम पोर्टफोलियो IAS अधिकारियों के पास है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर पड़ी है। स्टेटहुड पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें 3 चरणों का वादा किया गया था, डिलिमिटेशन, चुनाव और उसके बाद स्टेटहुड। चुनाव हो चुके हैं, लेकिन स्टेटहुड अभी तक बहाल नहीं हुई। मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा, क्योंकि संसद में ये वादा किया गया था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिजली और रोजगार से जुड़े वादों पर भी अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा तभी पूरा होगा जब स्मार्ट मीटरिंग पूरी तरह से लागू हो जाएगी। डेली वेजेस के मुद्दों पर उनका कहना था कि हमने उनसे समय मांगा है, PDP ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का जो वादा किया गया था, सरकार बनते ही उसे पूरा कर दिया गया। जो लोग हमें अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ PDP ने किया, जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर में वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। 2 दिनों तक चली ये बैठक कई राजनीतिक संकेतों के साथ पूरी हुई। पार्टी ने 7 प्रस्ताव पारित कर अपना रुख साफ किया, विधायकों की बात सुनी और हालिया उपचुनावों की व्यापक समीक्षा की। लेकिन आगा रोहिल्ला की गैर मौजूदगी और उमर का तीखा बयान ये दिखाता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और बातचीत को लेकर अभी भी सवाल बाकी हैं। श्रीनगर में हुई ये बैठक इस संदेश के साथ खत्म हुई। NC अपनी आंतरिक अनुशासन रेखा को मजबूत कर रही है और राज्य के पुराने अधिकारों, स्टेटहुड से लेकर 370 की लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग आज श्रीनगर के हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस आज लाए गए हैं और वही कई सारे और मुद्दे हैं जिन पे बात की गई। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हुई है। उन्होंने कहा कि JERC के पास इस वक्त ये मुद्दा रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जो 20% हाइक है वो ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगें, ताकि तब हम डिसाइड कर पाएं कि कौन से डिजर्विंग वो रेसिडेंट्स है यहाँ के, जो 200 यूनिट्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2 दिन के लिए मीटिंग हुई और आज ये श्रीनगर के हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुई। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।